السلام علیکم جناب، کیسے مزاج ہیں آپ سب کے؟ دعا ہے کہ آپ سب خوش رہیں، آباد رہیں۔ اے جے الیکٹرک یوٹیوب چینل کے ساتھ میرا نام عامر ہے۔ پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو الیکٹریکل موٹر سے ریلیٹڈ ویڈیوز کی سیریز کی ایک کڑی ہے، جس کے اندر میں آج آپ کو ایک کیپیسٹر سٹارٹ موٹر کی کنسٹرکشن، اس کی ورکنگ، اس کا آپریشن اور اس کی اپلیکیشنز پر مشتمل اس کا ایک پورا کانسیپٹ آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے علم میں یقیناً ایک مثبت حد تک کافی اضافہ ہوگا۔ تو پیارے دوستو، انڈکشن موٹر کو آج سے ٹھیک 133 سال پہلے ایک سائنسدان نکولا ٹیسلا نے جو ہے وہ سن 1888 کے اندر ایجاد کیا تھا، بنایا تھا۔ اب ہمارے ہاں عام طور پر گھروں میں دو قسم کی انڈکشن موٹریں جو ہیں وہ ہم ہوم اپلائنسز کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ ایک ہوتی ہیں کیپیسٹر سٹارٹ انڈکشن موٹر اور دوسری ہوتی ہیں کیپیسٹر رن انڈکشن موٹر، جو ہماری واشنگ مشین کے اندر، سیلنگ فین کے اندر یعنی چھت والے پنکھے کے اندر، اس کے علاوہ پیڈسٹل فین یعنی کہ سٹینڈ والے پنکھے کے اندر، روم کولر کے اندر، پانی والی موٹر کے اندر، یا پھر جو گھاس کاٹنے والی مشین ہوتی ہے اس کے اندر جو موٹر استعمال ہوتی ہے دوستو، اس کو ہم کہتے ہیں کیپیسٹر رن انڈکشن موٹر۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارا ریفریجریٹر ہوتا ہے یا جس کو ہم فریج کہتے ہیں، اس کے کمپریسر میں جو موٹر استعمال ہوتی ہے دوستو، اس کو ہم کہتے ہیں کیپیسٹر سٹارٹ انڈکشن موٹر، جو کہ آپ کے سامنے یہاں پر پڑی ہوئی ہے۔ ایک موٹر آپ کے سامنے میں نے یہاں پر کھول کے ڈسپلے کی ہے، جبکہ دوسری جو ہے یہ اپنی ثابت حالت کے اندر موجود ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو کیپیسٹر سٹارٹ موٹر کا جو پورا شجرہ نسب ہے کہ اس کے آباء و اجداد کون کون سے ہیں، یہ بتانا ضروری سمجھوں گا۔ تو بنیادی طور پر جی، الیکٹریکل موٹرز کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں اے سی موٹرز اور دوسری ہوتی ہیں ڈی سی موٹرز۔ اے سی موٹرز جو ہیں ان کو آگے مزید ہم جو ہے وہ دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، ایک ہوتی ہیں سنگل فیز اے سی موٹرز اور دوسری ہوتی ہیں 3 فیز اے سی موٹرز۔ اب یہ جو سنگل فیز اے سی موٹرز ہیں ان کی آگے مزید 5 اقسام ہیں، اور ان میں سے جو پہلی قسم ہے اس کا نام ہے انڈکشن موٹر۔ اور انڈکشن موٹر ہوتی ہے دو طرح کی، ایک کا نام ہے کیپیسٹر رن انڈکشن موٹر، جس کا حوالہ میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں، اور دوسری کا نام ہے کیپیسٹر سٹارٹ انڈکشن موٹر، جس کا آج ہم یہاں پر ذکر کریں گے۔ اور میری اس بات کو سپورٹیو پیارے دوستو، الیکٹریکل موٹرز کی کلاسیفیکیشن اور اس کے پورے خاندان پر مشتمل ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو میں پہلے اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کر چکا ہوں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز پیارے دوستو، جو کہ اکثر جو ہے وہ الیکٹریکل کے اسٹوڈنٹ سے انٹرویوز کے اندر بھی پوچھا جاتا ہے کہ ایک کیپیسٹر رن انڈکشن موٹر اور کیپیسٹر سٹارٹ انڈکشن موٹر کے اندر بنیادی فرق کیا ہے۔ تو بنیادی فرق بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز، اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کلیئر کر دیتا ہوں کہ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، کیپیسٹر رن انڈکشن موٹر ایسی موٹر ہوتی ہے جس کے اندر جو کیپیسٹر ہے وہ لگاتار رن کرتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر شامل رہتا ہے، جبکہ کیپیسٹر سٹارٹ جو انڈکشن موٹر ہوتی ہے اس کے اندر جو کیپیسٹر لگا ہوتا ہے وہ صرف ابتدائی چند لمحات کے اندر جو ہے وہ سرکٹ میں شامل کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو سرکٹ سے ایک سینٹریفیوگل میکینزم کے ذریعے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے پیارے دوستو، ہم اس موٹر کی کنسٹرکشن کی اگر بات کریں تو اس کی کنسٹرکشن یعنی بناوٹ کے اندر مین جو ایلیمنٹس ہیں یہ دو ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اس کی وائنڈنگ اور نمبر 2 اس کی کور۔ کور کے اندر جو ہے وہ وائنڈنگ کی جاتی ہے اور درمیان میں ایک روٹر جو ہے وہ موو کر رہا ہوتا ہے، جو کہ اسکرل کیج ٹائپ روٹر ہوتا ہے۔ اب یہ جو وائنڈنگ ہوتی ہے یہ اس میں دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کا نام ہے مین وائنڈنگ اور دوسری کا نام ہے سٹارٹنگ وائنڈنگ۔ مین وائنڈنگ کو ہم رننگ وائنڈنگ بھی کہتے ہیں اور سٹارٹنگ وائنڈنگ کو ہم ایگزیلری وائنڈنگ یعنی کہ عارضی وائنڈنگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ مین وائنڈنگ کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ موٹر کو چلاتی ہے، اس کے اندر الیکٹرو میگنیٹک فلکس بنتا ہے، تو الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کے پروسیس کے تحت اس کے اندر ایک ٹارک بنتا ہے جس سے روٹر گھومتا ہے اور یہ موٹر چلتی ہے۔ جبکہ سٹارٹنگ وائنڈنگ کا کام، جو سٹارٹنگ ٹارک ہوتا ہے اس کی وجہ سے بننے والا جو ہائی کرنٹ ہوتا ہے اس کو لمٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو مین وائنڈنگ ہوتی ہے یہ ہمیشہ پیارے دوستو موٹی تار سے بنائی جاتی ہے، یعنی کہ اس کی جو ریزسٹنس ہے وہ کم سے کم ہوتی ہے، جبکہ جو سٹارٹنگ وائنڈنگ ہوتی ہے موٹر کی اس کی جو ریزسٹنس ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ باریک تار سے بنائی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس موٹر کے اندر سٹارٹنگ ٹارک پرووائڈ کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ فیز کو سپلٹ کرنے کے لیے ایک عدد جو کیپیسٹر ہے وہ ہم سٹارٹنگ میں سرکٹ میں شامل کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور موسٹ امپورٹنٹ چیز جو اس کی کنسٹرکشن میں جو ہے وہ سامنے آتی ہے وہ ہے یہ سینٹریفیوگل سوئچ، جس کو عرف عام میں عام طور پر جو ہے وہ باہر لوگ کلچ بھی کہتے ہیں۔ اس کو سینٹریفیوگل سوئچ کہتے ہیں، جو کہ سینٹریفیوگل فورس کے فینومنا کے تحت جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں کس طرح سے مل کے جو ہے وہ پرفارم کرتی ہیں اور کس طرح سے ان کا آپریشن ہوتا ہے، چلیے میں آپ کو اس موٹر کو آن کر کے جو ہے وہ بھی دکھاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو باری باری جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کا 1 بائی 1 جو ہے وہ ریویو آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، تاکہ آپ کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ
क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों इसके पार्ट्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी जो वाइंडिंग है ये बिल्कुल साइडों पे होती है। इसको हम स्टेटर वाइंडिंग भी कहते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर दो किस्म की वाइंडिंग्स होती हैं, एक स्टार्टिंग और दूसरी मेन। और इसके दरमियान में एक अदद जो रूटर है वो इस तरह से जो है वो मूव कर रहा होता है, और इसी रूटर की जो शाफ्ट होती है उस शाफ्ट के एंड के ऊपर ये एक अदद सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है, इसको सेंट्रीफ्यूगल स्विच कहते हैं, लोग इसको क्लच का नाम भी देते हैं, ये लगा होता है जो कि दो पत्रियों को जो है वो आपस में कनेक्ट करता है। जैसे ही आपको नजर आ रहा है यहाँ पर ये दो पत्रियां लगी हुई हैं, एक पत्री इस साइड पे है, एक पत्री इस साइड पे है। जब ये ऐसे बाहर होगा तो ये दोनों पत्रियां जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगी। जब ये वापस अपनी जगह पे जाएगा तो ये दोनों पत्रियां आपस में इस स्विच के थ्रू शॉर्ट हो जाएंगी। तो असल में इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम प्यारे दोस्तों ये होता है कि ये स्टार्टिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर के सीरीज में लगा होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको पता है एक ऐसी फोर्स होती है कि जो किसी भी जिस्म को दायरे से बाहर घुमाने पर मजबूर करती है, जबकि इसके उलट जो फोर्स होती है वो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि किसी भी चीज को दायरे के अंदर घुमाने पे मजबूर करती है। मिसाल के तौर पर हमारी जो वॉशिंग मशीन के अंदर जो फोर्स होती है जिसकी मदद से कपड़े जो है वो एक ही जगह पे घूमते रहते हैं, उसको हम कहते हैं कि उसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स है। जबकि ड्रायर जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर काम करता है कि वो कपड़ों को घुमाता है और अंदर जितना जो पानी होता है वो सारा ड्रायर की साइडों पे जो सुराख होते हैं उससे बाहर निकल जाता है। तो इसी तरह से जब प्यारे दोस्तों मोटर की स्पीड अपनी 70 to 80% स्पीड को एक्सीड कर लेती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये जो स्विच है ये उस फोर्स की वजह से ऐसे खुल जाता है, बाहर आ जाता है। और जैसे ये बाहर आता है तो इसकी ये जो दो टर्मिनल हैं जिनके दरमियान में कैपेसिटर और स्टार्टिंग वाइंडिंग लगी होती है वो भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। यानी कि जैसे ही हम मोटर को ऑन करेंगे तो शुरू के 5 या 6 सेकंड के लिए जो है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर जो है वो सर्किट में शामिल होंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद 5 या 6 सेकंड के बाद जैसी स्पीड इंक्रीज होगी तो इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच यानी कि इस क्लच के परफॉर्म करने की वजह से, इसके ऑपरेट करने की वजह से ये बाहर आएगा जैसे ही, तो उसके बाद कैपेसिटर और स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है वो सर्किट से आउट हो जाएंगे। उसके बाद मोटर सिर्फ और सिर्फ मेन वाइंडिंग के ऊपर जो है वो वर्क करेगी। तो चलिए मैं अब आपको इसकी सर्किट डायग्राम, इसके कनेक्शन और इसको ऑन करके जो है वो लाइव इसका ऑपरेशन दिखाता हूं कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच किस तरह से काम करता है और एक कैपेसिटर स्टार्ट मोटर किस तरह से वर्क करती है। और बिल्कुल यही चीज प्यारे दोस्तों आप यहाँ पर इस मोटर के अंदर भी देख सकते हैं कि ये पूरा जो है वो इस मोटर की ये फ्रेम है और इसके अंदर ये इसकी स्टेटर कोर है जिसके अंदर यहाँ पर वाइंडिंग की गई है और इसमें दोनों वाइंडिंग शामिल हैं, इसमें मेन वाइंडिंग भी शामिल है और स्टार्टिंग वाइंडिंग भी शामिल है। और इसी तरह से आप यहाँ पर इस मोटर के रूटर के ऊपर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी शाफ्ट के ऊपर भी एक अदद ये जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है ये लगा हुआ है और जब ये ऐसे ऑपरेट करता है तो यहाँ पर पीछे जो मौजूद पत्रियां हैं वो आपस में जो है वो अटैच हो जाती हैं। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच या फिर क्लच होता है प्यारे दोस्तों, ये बेसिकली फर्क है एक कैपेसिटर स्टार्ट मोटर और एक कैपेसिटर रन मोटर के दरमियान। जैसा कि आपको यहाँ पर ये जो मोटर नजर आ रही है प्यारे दोस्तों, ये एक कैपेसिटर रन मोटर है और इसके रूटर के ऊपर आप देख सकते हैं कि साइड पे कोई भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है वो नहीं लगा हुआ। यहाँ पर ये एक और मोटर भी पड़ी है और इसके रूटर को भी आप देख सकते हैं कि ये सिंपल रूटर है, इसके ऊपर भी कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है वो कोई क्लच मौजूद नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि कैपेसिटर स्टार्ट जो मोटर होती है उसके अंदर एक अदर ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है, जबकि कैपेसिटर रन मोटर के अंदर ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच मौजूद नहीं होता। यानी कि अगर आपके सामने दो एक जैसी मोटरें रखी जाएं और आपसे ये सवाल किया जाए कि बताइए इसमें से कैपेसिटर स्टार्ट कौन सी है और कैपेसिटर रन कौन सी है, तो उसका सिंपल तरीका ये है कि आपने चेक करना है कि जिस मोटर की रूटर की शाफ्ट के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल स्विच मौजूद है वो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, जबकि जिसके ऊपर मौजूद नहीं है, सिंपल रूटर है, तो वो कैपेसिटर। चलिए प्यारे दोस्तों, अब मैं सबसे पहले आपको इसकी सर्किट डायग्राम और इसकी जो कनेक्शन है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इसके दो टर्मिनल हैं रेड कलर में, ये इसकी मेन यानी कि रनिंग वाइंडिंग के टर्मिनल्स हैं। इसी तरह से यहाँ पर ये जो दो टर्मिनल हैं ये इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग के हैं। उसके साथ ये जो दो टर्मिनल हैं ये कैपेसिटर है और इसके ऊपर ये जो येलो कलर में दो टर्मिनल आपको नजर आ रहे हैं ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच के टर्मिनल हैं। तो यहाँ पर अगर आपको मैं सर्किट डायग्राम दिखाऊं तो आप इधर देख सकते हैं कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है
اور कैपेसिटर है और सेंट्रीफ्यूगल स्विच है। ये तीनों चीजें आपस में सीरीज में कनेक्ट होती हैं, यानी कि जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑपरेट करेगा तो उसके साथ ही कैपेसिटर, स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये दोनों चीजें जो हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगी और ये तीनों चीजें आपस में सीरीज में कनेक्ट होकर उसके बाद मेन जो वाइंडिंग है हमारी रनिंग वाइंडिंग, उसके पैरेलल में कनेक्ट होती हैं। ये जैसे आपको सर्किट डायग्राम नजर भी आ रही है, तो इसके अकॉर्डिंगली अब मैं यहाँ पर जो है वो इसको कनेक्ट करता हूं। तो अब आप लोग देखिएगा प्यारे दोस्तों कि जैसे जैसे मैं यहाँ से पावर सप्लाई की मदद से वोल्टेज इंक्रीज करूंगा, यहां पर आपको ये वोल्टेज भी नजर आ रहे होंगे, तो जैसे जैसे मैं इसको यहां से वोल्टेज अप्लाई करूंगा तो वैसे वैसे इसकी स्पीड इंक्रीज होगी और अभी आप देख रहे हैं कि मोटर जो है वो ऑन हो चुकी है। तो चलिए अब मैं इसके बाद आपको इसका जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है उसका जो मैकेनिज्म है वो लाइव वीडियो में दिखाता हूं। तो इस जगह के ऊपर प्यारे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये वो पतरी है जो कि कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होती है। तो उसके बाद हमारा जो कैपेसिटर और स्टार्टिंग वाइंडिंग और जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है इसका सर्किट जो है वो मेक और ब्रेक होता है। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है ये इस पोजीशन के अंदर मौजूद है। तो अब मैं इसको ऑन करता हूं तो आपके सामने देखिएगा कि ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच जैसे ही ऑपरेट होगा उसके बाद ये जो पतरी है यहाँ से जो है वो क्लोज हो जाएगी। तो ये देखिए मैं आस्ता आस्ता यहाँ से वोल्टेज अभी इंक्रीज कर रहा हूँ। अब जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी तो वैसे ही ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑपरेट करेगा। ये देखें अब आप देख रहे हैं कि इसने ऑपरेट किया है। अब जैसे ही स्पीड कम होगी, क्योंकि मैंने वोल्टेज अभी कम अप्लाई किए हैं, तो वो देखें दोबारा से अपनी पहली वाली पोजीशन के ऊपर वापस चला गया। और अब ये बार बार ऐसे ही मेक और ब्रेक होता रहेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ 32 वोल्ट जो है वो अप्लाई किए हैं। अगर मैं यहाँ से इसको वोल्टेज इंक्रीज कर दूं, यानी कि एक ही बार जो है वो 220 वोल्ट इसको प्रोवाइड कर दूं, तो फिर ये अपनी इसी पोजीशन के अंदर चलता रहेगा। और जब ये इस पोजीशन के अंदर चलेगा तो अब स्टार्टिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर सर्किट से बाहर निकल चुके हैं। अब जो मोटर है प्यारे दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ मेन वाइंडिंग से बनने वाले फ्लक्स के ऊपर जो है वो ऑपरेट कर रही है। और जब हम इसको ऑफ करेंगे तो फिर से ये जाकर अपनी पहली वाली पोजीशन के ऊपर देखिएगा आपके कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो ये फंक्शन होता है जी प्यारे दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल स्विच, या फिर जिसको लोग क्लच भी कहते हैं। इसका काम सिर्फ कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के अंदर ये होता है कि इसने स्टार्टिंग के लम्हात में कैपेसिटर के स्टार्टिंग टार्क और स्टार्टिंग वाइंडिंग की रेजिस्टेंस को यूटिलाइज करके मोटर को स्टार्ट करना होता है। और उसके बाद जैसे ही जो है वो मोटर एक स्पीड पे पहुंचती है तो उसके बाद ये फौरन से ऑपरेट करके इन दोनों को सर्किट से बाहर निकाल दे। तो मैं उम्मीद करता हूं प्यारे दोस्तों कि आपको कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की जो वर्किंग है और इसका जो ऑपरेशन है कि ये किस तरह से काम करती है, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा कि इसके अंदर जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा है इसका क्या काम है और ये कैसे काम करता है। ये जो मोटर होती है ये हमारे घर में जो रेफ्रिजरेटर होता है यानी कि फ्रिज, उसके कंप्रेसर के अंदर ये मोटर जो है वो इस्तेमाल की जाती है। और इसीलिए आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि फ्रिज में से जो टिक टिक की आवाज आ रही होती है वो बेसिकली उसके कंप्रेसर में मौजूद मोटर के सेंट्रीफ्यूगल स्विच के ऑपरेट करने की होती है। तो अगर आप आइंदा भी इस तरह की इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल और नॉलेज से भरपूर वीडियोस टाइम टू टाइम देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल। खुदा हाफिज।